اب اس لحاظ سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر سامنے نہیں آتے، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ مستحق ہوتے ہیں، گھر کے اندر فاقے کیوں نہ، وہ سامنے نہیں آتے، اس لیے کہ اپنی ذلت سے بچنے کے لیے، جی فلاں بڑی تنظیم ہے، جی میرے پیر صاحب کو فلاں ادارہ میں نے وہاں دینی ہے، اگرچہ ہمارا قریبی ادارہ جو ہے وہ بالکل ہی بند ہونے کو آ جائے، یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تو اعلیٰ سوٹ لیں، جب کسی اور کو سوٹ لے کر دینا ہو تو اس کے لیے گزارے والا سوٹ لے لیں۔ حال پہلے یہ ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج ماحول الٹا بن گیا ہے، نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہباز نقشبندی، ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے انشاءاللہ العزیز جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ اس عنوان پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیں میں اپنے اس پروگرام میں آئے ہوئے مہمانان گرامی کا، اپنے سکالر کا آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے اس پروگرام کا آج حصہ بنے حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا سعیدی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق عزیز سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کا حکم دین اسلام میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تمام ادیان جو تھے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کو بھی یہ حکم تھا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس سے قلوب کی تطہیر ہوتی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، پاک کرنا، صاف کرنا۔ ناظرین کرام، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، جب بندہ مسلمانوں کی، غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس کی برکت سے، ہر قسم کی مصیبت سے، وبا سے، پریشانی سے، بیماری سے محفوظ فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام جو ہے یہ ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں زمین و آسمان کا، امیری اور غریبی کا اتنا فاصلہ نہ ہو۔ یقیناً کچھ لوگ امیر بھی ہوں گے، کچھ لوگ غریب بھی ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر ریاست اسلامی جو بھی ہوگی اس کی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر شہری کو ضروریات زندگی اسے مہیا کرے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیں ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا سعیدی صاحب سے، آپ اس عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ یہ خیر کے کام ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ خیرات بھی، یہ بھی نیکیوں کے کام ہیں، کیونکہ صدقہ خیرات سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بے شک صدقہ خیرات جو کرتا ہے رب کائنات اس کا خاتمہ ایمان پر عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات اس کو مصیبتوں اور بلاؤں سے بچاتا ہے۔ بے شک۔ تو سرکار کی حدیث بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات سے مال گھٹتا نہیں، صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ اللہ کی راہ میں گویا 1 گنا اگر خرچ کرتا ہے اللہ کی مخلوق پر تو رب کائنات اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ خیرات سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، اور اس کے مال کے اندر رب کائنات برکتیں بھی عطا فرماتا ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے غریبوں پر۔ بے شک۔ سید اعلی حضرت مجدد دین الملت حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی کے اندر اس کو نقل کیا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائیوں کے کاموں سے بندہ بری موتوں سے بچ جاتا ہے، کہ جو بھلائیوں کے کام کرتے ہیں وہ بری موتوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ پوشیدہ خیرات کرنا، صدقہ خیرات کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بے شک۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ، عائز اقربا کے ساتھ
अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करना, इससे उम्र में बरकत आती है। बेशक। और किसी भी किस्म का लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचाया जाए, हत्ता कि अगर मुस्कुरा कर किसी के साथ बोला जाए, तो सरकार ने फरमाया कि ये भी सदका है। सुभान अल्लाह। बेशक। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक पर एहसान करेगा तो गोया कि रब्बे कायनात कल क़यामत उस पर एहसान फरमाएगा। बेशक। इस हदीस का मफ़हूम यूँ समझ लें कि सरकार ने फरमाया कि बलाइयों के कामों से, भलाइयों के कामों से इंसान बुरी मौत से बच जाता है। बेशक। कि जो बंदा रब की मखलूक के साथ भला करता है, मोमिनों के साथ भला करता है, एहसान करता है, तो रब्बे कायनात उसको अच्छी मौत अता फरमाता है। जब वो मरता है तो उसका खात्मा ईमान पर होता है। सुभान अल्लाह। और इसी हदीस के अंदर सरकार ने फरमाया कि पोशीदा सदका खैरात करना ये रब की गज़ब की आग को ठंडा करता है। बेशक। गोया कि जो बंदा सदका दे रहा है, खैरात कर रहा है, और जो खैरात ले रहा है, कि उन दोनों के अलावा तीसरे को पता ना चले कि कोई बंदा अगर इस तरह खैरात करता है, सदका करता है कि वो जिसको दे रहा है उसके अलावा कोई ना देख रहा हो, तो ऐसा सदका सरकार ने फरमाया कि रब की गज़ब की आग को ठंडा करता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा सदका करे, खैरात करे, कोई नेकी करे, दाएं हाथ से करे, बाएं हाथ को पता तक ना चले। इस वजह से सुभान अल्लाह कि जिसको दे रहे हैं उसकी इज्जत मजरू ना हो, अल्लाह उसको जलील ना करे। आजकल तो ऐसे होता है ना कि कोई अगर सदका खैरात करता है तो सेल्फी वगैरह, तस्वीर वगैरह बनाकर जिसको दे रहा है उसको उसकी तजलील करता है। सरकार ने ऐसा करने से मना फरमाया। सरकार ने फरमाया कि इस तरह सदका खैरात करें कि एक हाथ जिस हाथ से दे रहे हैं और यानी कि दूसरे हाथ को पता न चले कि इस वजह सरकार ने फरमाया कि सदका खैरात जो पोशीदा तौर पर करते हैं तो रब के गजब से वो बच जाते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी हदीस के अंदर सरकार ने फरमाया कि जो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं तो रब्बे कायनात उनकी उम्र को बढ़ा देता है। जो चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ के अंदर और हमारी उम्र के अंदर बरकत हो, तो सरकार ने फरमाया कि उनको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ, आइज़ अक़रबा के साथ अच्छा सलूक करें। सुभान अल्लाह। तो पता चला हदीस मुबारक से कि जो भी बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है गोया कि उसका माल घटता नहीं बल्कि उसका माल बढ़ता है, और जो सदका खैरात करता है वो बलाओं से, मुसीबतों से बच जाता है। और सरकार ने फरमाया कि उसका खात्मा ईमान पर होता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से बंदा मोमिन जब भी सदका खैरात करे तो पोशीदा तौर पर करे, सरकार ने फरमाया, और जब सदका खैरात कर दे तो उसका एहसान जतलाए नहीं। अल्लाह अकबर। अगर जो बंदा सदका खैरात कर कर उसको जतलाता है तो गोया कि वो अपनी सदका खैरात को, अपनी नेकी को वो ज़ाया कर देता है। अल्लाह। तो इस्लाम के अंदर सदका खैरात की बहुत अहमियत है, तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द में जो भी अगर मुस्तहिक हैं उन पर सदका खैरात करें, इससे हमारा माल घटेगा नहीं बल्कि माल हमारा बढ़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया कि अल्लामा साहब माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे लहजे में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सदका खैरात करता है, ज़कात अदा करता है, तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में इजाफा फरमाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो दौर भी आएगा जब ज़कात देने वाले तो होंगे लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा, जब हुक्मरानों की नीयतें अच्छी होंगी, जब अहले सरवत लोग दीन इस्लाम पर अमल करते रहेंगे तो मुआशरा खुशहाली में होगा। जी नाज़रीन किराम, अब मैं मुफ्ती साहब से मुल्तमिस हूँ, जी अल्लामा साहब आप हमें इस उन्वान पर मज़ीद रोशनी डालें, ज़कात की अहमियत क्या है, ज़कात की अदायगी कैसे करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर ज़कात के मसारिफ़ को बयान करते हुए खालिक़ कायनात अहकमुल हाकिमीन इरशाद फरमाया ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, फरमाया करीबी हैं। अब इन क़ुरबा में करीबी रिश्तेदार भी हैं, अज़ीज़ व क़ारिब, हमसाए, करीबी दीनी इदारे, वो हैं पहले नंबर पर। उनके बाद जो दर्जा है वो फरमाया यतामा, वो यतीम हैं, फिर मिस्कीन हैं, फरमाया उन्हें दें। ये मसारिफ़ हैं कि इन्हें देना चाहिए। अब सूरत हाल कुछ यूँ बन जाती है कि जब हम ज़कात देते हैं यतामा और मसाकीन को भी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर ज़कात जो है वो आजकल फलाही इदारों को दे दी जाती है।
जी। करीबी रिश्तेदारों को कुछ अपनी जाती इनाद की वजह से जो उसने मेरे साथ ये ज्यादती की, अब वो मुस्तहिक है तो फिर मैं उसकी क्यों मदद करूं जी। ये अना आ जाती है हमारे अंदर, इस वजह से नहीं देते। या हमारे करीबी जो दीनी इदारे होते हैं हम उन्हें नहीं देते। जी फलां बड़ी तंजीम है, जी मेरे पीर साहब को फलां इदारा मैंने वहां देनी है, अगरचे हमारा करीबी इदारा जो है वो बिल्कुल ही बंद होने को आ जाए, उसकी परवाह नहीं होती। जी मैंने तो अपने पीर साहब को देनी है, जी मैंने तो अपने फलां लीडर को देनी है, मैंने तो फलां को देनी है। तो इसलिए जो है वो पहला जो हक है वो किसका है? करीबी। अब क़ुरबा में हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमसाए भी हैं, करीबी दीनी इदारे भी हैं। अगर आपके मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा इदारा है, आपके करीबी रिश्तेदार ऐसे नहीं है जो मुस्तहिक हों, या उन्हें देकर फिर भी आपका माल बच गया है, तो उसके बाद आपके हमसाए हैं उन्हें देकर भी अगर या वो मुस्तहिक ही नहीं है फिर भी आपके पास है माल, तो फिर आपके मोहल्ले का वो इदारा है, वो मदरसा है जो दीन का काम कर रहा है और सहीहुल अकीदा है, उसे का फिर सबसे पहला हक है कि उसे दें। बाकी तंजीमें, बाकी इदारे, बाकी पीर मुरीद और कायद लीडर, उनके सारी तंजीमात का हक बाद में है। आपके मोहल्ले का जो इदारा है, आपकी गली का, इलाके का जो इदारा है और सहीहुल अकीदा लोगों का इदारा है, उसका सबसे पहला हक है कि उसे दिया जाए। और यूं भी आज हम देखने को आता है माहौल कि यतीमों को जब माल दिया जा रहा है तो सूरत हाल पहले ये होता था नेकी कर दरिया में डाल, आज माहौल उल्टा बन गया है नेकी कर और फेसबुक पे डाल। इधर से तस्वीर चाहे 10 रुपए दे रहे हैं तो 7 सेल्फी ली जा रही है। अब ये आप उस गरीब को देकर उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसकी खुशियों को आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, ये उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, या उसको दीन मतीन के ऊपर अमल कर रहे हैं। अब इसलिए आज से कई लोग ऐसे होते हैं कि फिर सामने नहीं आते, जो इज्जतदार लोग होते हैं अगरचे वो मुस्तहिक होते हैं, घर के अंदर फाके क्यों ना, वो सामने नहीं आते, इसलिए कि अपनी जिल्लत से बचने के लिए आज हमने इस नेकी के काम को, नेकी का काम कम और जिल्लत का सामान ज्यादा बना लिया है। और जो खर्च करने वाले हैं उनके मुताल्लिक भी सरकार ने फरमाया, जो रियाकारी के लिए फरमाता, सरकार ने तो यहां तक फरमाया रियाकारी को शिर्क खफी करार दिया, फरमाया ये शिर्क है और ये शिर्क वो नहीं है जिसकी माफी नहीं, बल्कि ये शिर्क खफी से करार दिया। तो इतना बड़ा गुनाह है रियाकारी, और हम उसमें कितने मजे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितने मजे के साथ उसके अंदर हम मुलव्विस हो जाते हैं और हमें एहसास नहीं होता। और बस औक़ात बाद लोग कहते हैं जी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग भी देख कर करें, भी लोग कर देख कर करें, जब तुम दे रहे उस वक्त कोई नहीं देख रहा। आपने अगर ठीक है लोगों को दिखाने के लिए इसलिए ताकि लोगों को भी रग़बत आए, तो आप देने से पहले उसकी वीडियो बनाकर डाल दें, वो भी तो लोग देख लेंगे ना। उस वक्त उस गरीब की तस्वीर लेना लाजमी है, क्या फर्ज है, वाजिब है, उसे क्या जलील करना लाजमी है? आज ये नेकी का काम कम और अपनी नमूदो नुमाइश ज्यादा बन चुकी है। तो इस तरफ हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने करीबियों के अंदर देखें, अपने इलाके के अंदर देखें आज क्या माहौल है। आज ये माह रमजान आ रहा है, आगे ईद का समा आ रहा है, हम अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। और इसी तरह जब और लोग होते हैं जिन्हें हम किसी और को हमने ईदी देनी हो, अपने बच्चों को हमने ईदी 1000 रुपए देनी है और किसी और को अगर हम ईदी देने लगे हैं तो वहां हमने जेब से 100 रुपए भी बड़ी मुश्किल से निकलता है, 500 भी बड़ी मुश्किल से। कोई किसी का हाथ वसी हो जाए तो वो 500 निकाल कर किसी के हाथ में थमाएगा, ये जी आपकी ईदी है। तो इसी जब हम अपने बच्चों को, कुरान ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, फरमाया उस वक्त तुम नेकी की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज न खुदा की राह में कुर्बान करो। और ये तब नेकी मिलेगी। ये नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए तो आला सूट लें, जब किसी और को सूट लेकर देना हो तो उसके लिए गुजारे वाला सूट ले लें। नहीं नहीं, ये कुरान ऐसी नेकी को कबूल करने का इकरार ही नहीं है। वो फरमाता है वो मैं कबूल करूंगा जो सबसे बेहतर होगी। जो लिबास तुम खुद पहन रहे हो गरीब को भी वही लेकर दो ना। अपने अगर मोहल्ले के इमाम साहब को अब लेकर दे, वो तो आपका राहबर और रहनुमा, आपका पेशवा है, आपके पूरे इलाके का, एक दूसरे लफ्जों में अगर कहूं तो आपके पूरे इलाके का वो चौधरी है। एमएनए एमपीए से उसकी इज्जत ज्यादा है। आप जो सूट अपने इमाम को लेकर देते हैं, क्या कभी आपने वो अपने एमएनए को लेकर दिया? एमएनए को तो छोड़े अपने बच्चों को भी लेकर दिया। इसलिए इस तरफ हमारी तवज्जो होना लाजमी है।
हम ये चाह रहे होते हैं कि नेक काम करें, और ये माह रमजान आ रहा है, एक नेकी 10 के बराबर। हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं इसके अंदर ज्यादा खर्च करूं, अगरचे आप 2 आदमी को दें, 3 को दें, लेकिन इतना उसे दें कि उसे किसी और के आगे जो है वो दस्ते सवाल दराज ना करना पड़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया। मुफ्ती साहब बड़े ही प्यारे अंदाज में और बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में गुफ्तगू फरमा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़कात इस्लाम का एक बहुत बड़ा पुल है। जो शख्स माल की ज़कात अदा करे तो उसके माल से शर ख़त्म हो जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने माल को ज़कात के ज़रिए से महफूज करो। नाज़रीन किराम, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले मरतबा फिर इंशाअल्लाह हम एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।